Okay, Hina, so let's begin the interview. Jaidev sir will be joining in due course of time. Okay. So are we audible? Yes, sir. Everything is fine. We are visible. All good. Yes, sir. Perfect. So let's begin. So tell us something about yourself, Hina. So my name is Hina Bindlish. I come from Safedo district, Jind, Haryana. I have done my graduation in BSc Biology from KVA DAV College, Karnal. After that, I have done my masters in public administration from IGNOU, Delhi. My hobbies are writing poetry and cooking. I'm also a author in a book, Kahani Lafzon Ki. I'm very hardworking and determined girl. Hina, so why specifically Haryana Civil Services? Any specific reason? So basically, sir, I want to serve my state, and this job provide me the better opportunity to utilize my all talent in all fields. Did you also appear for UPSC? Yes, sir. How many attempts have you already given? Sir, 3. So you started your preparation in which year? Sir, 2016. And from 2016 to 2022, all these 6 years, how many exams, various exams have you appeared for? Sir, actually, meanwhile, sir, in 2017, I cleared CDS exam and I got injury during my SSP. After that, I was on bed rest for 2 years. After that, I started my preparation again in 2020. Okay. Perfect. So about your educational qualification, what did you tell us about your graduation? आपने किस चीज में किया graduation? Sir, BSc in biology. My subjects were botany, geology, and chemistry. Botany, geology, and chemistry. Chemistry. So how difficult was it for you to study other subjects of with respect to this examination? और बहुत अपने अलग-अलग subjects पढ़े होंगे. How was your experience? Sir, initially I faced many difficulties like reading newspaper or polity and geography. After that, sir, कुछ struggle, hard work किया, थोड़ा understanding लेकर आई, तो सर उसके बाद used to हो गया था. बट इतना जैसे हम देख पा रहे हैं आपके डैफ में, जैसे अभी तक आपने ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कोई जॉब भी नहीं की, सो योर एंटायर फोकस हैज बीन दीस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस ओनली? Sir, I have taken tuition for at my home. Okay, so you like ये तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो अदरवाइज यू हैव नॉट वर्क फॉर एनी कंपनी, यू हैव नेवर? No, sir. Okay. So hi Hina, hello, good morning. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. So you said that you have done your graduation in botany, geology, and chemistry, and then you shifted for your master's in public administration. And Yes, then sir. when you did your graduation in these subjects and you shifted to public administration, what was the thought behind that? Sir, actually, I want to take the like the outline for public administration, like public. अभी मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो एक ब्रॉड आइडिया आई वांट टू टेक अबाउट इट. तो ये सब्जेक्ट जो था मुझे एक ब्रॉड आइडिया दे सकता था कि व्हाट कैन अ सिविल सर्वेंट्स कैन डू. So for civil services, so were you even sure when you started preparing for civil service? Were you sure in graduation that you want to go for civil services? सर एक्चुअली सर ये एक जॉब है जो मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मैं अपने हर फील्ड को, अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकती हूँ और अपनी स्टेट के लिए काफी अच्छा कर सकती हूँ. तो नहीं, मेरा सवाल यह है, my question is that were you sure that when you started your graduation, did you think that you want to Yes, work sir. in a field where you are doing your graduation, you are pursuing your graduation, or you wanted to go for civil services only since the time of your graduation? So since the time of my graduation, I decided to go in civil service. So wouldn't it have been better that if you would have chosen for the subjects like public administration and all those in your graduation rather than going for botany, chemistry, geology in your graduation? Sir, actually my interest were in science. Actually, your Interest? Sir, interest was in science. Then why didn't you take any such optional subject in UPSC as well for science? Sir, my optional is botany in UPSC as well. Your option is botany. Okay, that's good. That's good. Yes, sir. So, Hina, so you come from this from Jind. Yes, sir. Jind. So Jind, what kind of issues that your specific Jind faces?
with respect to the other developing areas of Haryana? Because Jind, I suppose, is still in a developing phase. If you compare it around the other areas in Haryana, which are proximate to the NCR region, so Jind is still some kind of facing some issues of backwardness. So what are the primary issues that, according to you, Jind faces? Sir, as Jind is surrounded by the 7 districts of Haryana, लेकिन still सर वहाँ पर connectivity का issue है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम जिम की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पर सर एजुकेशन का थोड़ा अभी ड्रॉबैक है, एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वहाँ पर नहीं है, जिसमें हर फील्ड में स्टूडेंट जा सकता है। और सर अभी कोविड के टाइम पे जैसे ऑब्जर्व किया गया है, तो सर हेल्थ इश्यूज वहाँ पर काफी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर वहाँ पर प्रॉपर नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हरियाणा की बात करें ना, तो वुमेन को लेकर या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक काफी बार सवाल उठता है हरियाणा के अंदर, दैट स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन लेवल्स देखें तो वहां पर वुमेन को थोड़ा सा बैकवर्ड देखने को मिलता है जो रिपोर्ट्स आती हैं। सो स्पेसिफिकली टॉकिंग टू यू, सिंस यू आर अ वुमेन एंड आप इन सर्विसेज के लिए एस्पायर भी करते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक हरियाणा गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन? क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वुमेन को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए, स्पेसिफिकली हरियाणा में? सर स्पेशली सर हरियाणा में अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फर्स्टली तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन स्टार्ट हुआ है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसी की डायरेक्शन में हमें आगे चलना चाहिए। लाइक आपकी बेटी हमारी बेटी, स्पोर्ट्स में सर हरियाणा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर लड़कियों को बहुत अच्छी एम्पावरमेंट मिली है। तो एजुकेशन सेक्टर सर वन ऑफ द की जिससे वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है। और आफ्टर दैट सर द पेट्रियार्कल माइंडसेट नीड टू बी एड्रेस, like the boy preference and the bread earner wali thinking ki like women can also do in best in every field. Like Kalpana Chawla, we have the very best example at international level from she was from the Karnal. तो चलो ये तो होना चाहिए, बट लाइक आज की डेट में गवर्नमेंट और कौन-कौन सी स्कीम्स लेकर आई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? कैन यू नेम अ फ्यू स्कीम्स? So like one stop center for Sakhi to address the grievances, कन्या कोश सर सब और समृद्धि योजना। Can you specifically name some from Haryana only? The scheme is specific to Haryana. सर आपकी बेटी हमारी बेटी, और सर क्या होता है इस स्कीम में? What are the basic features of the scheme? आपकी बेटी हमारी बेटी। सर स्पेशली इसमें सर वुमेन की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है कि उसके बाद एक बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो विड्रॉ कर सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग 18 इयर्स ऑफ एज। जैसे मैंने अभी the questions that you have answered, so maximum of the times you have repeated one topic, that is education. So is this issue very close to your heart, and if yes, then why? सर एक्चुअली आई पर्सनली फील कि एजुकेशन जो है वुमेन को एम्पावर करने में बहुत हेल्प करती है। सर अदर सेक्टर आल्सो इम्पोर्टेंट लाइक हेल्थ सेक्टर की वुमेन एनीमिया की प्रॉब्लम से काफी सफर करती है, तो उसमें हेल्थ को एड्रेस करना चाहिए सर। उसके बाद उसको पंचायती राज में जैसे अब सरपंच के इलेक्शन में सर अभी वुमेन काफी अच्छा स्कोर कर रही है। अभी हरियाणा ने 50% रिजर्वेशन दिया है, तो ये बहुत एक अच्छा ग्रेट स्टेप है वुमेन को एम्पावर करने का। तो इसमें एजुकेशन वाला सवाल क्यों आपके दिल के करीब है, वो मैं पूछना चाहता हूं। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस पोर्शन ऑफ एजुकेशन दैट यू सेड हेल्थ, राइट, फाइन, so now there are, you digress from the question. So the question first is that why this issue of education is so close to your heart, and second is that you have said a couple of times women empowerment. What is according to you women empowerment? सर एक्चुअली सर एजुकेशन पर मेरा फोकस ज्यादा इसलिए क्योंकि सर आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन लाइक सफीदो, तो सर मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट फीमेल पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ जो अभी बाहर से स्टडी कर रही है और सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है। तो सर मैंने अपनी लाइफ में अभी ये फील किया है कि एजुकेशन ने मुझे कैसे एम्पावर किया है और कैसे मुझे एक सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली से। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? सर वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली सर उसको एक विंग्स देना कि वो अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर सके। सर बेसिकली वुमेन एम्पावर है ऑलरेडी, लेकिन उसके जो हर्डल्स है उसके रास्ते में वो हटने जरूरी है सर। सर वुमेन अपनी ऑल कैपेसिटी में बहुत कैपेबल है। ठीक है, सो योर हॉबी इज दैट यू राइट पोएट्री? यस सर। हिंदी, इंग्लिश? सर हिंदी और हरियाणवी? सर हिंदी। सर हिंदी। हिंदी।
तो कौन सी पोइट्री आपको ज्यादा पसंद है, किस तरह की पोइट पसंद है आपको? सर लाइक मैं पर्सनली सर ज्यादा पॉइंट्स को फॉलो नहीं करती सर, लेकिन जैसे जब भी टाइम मिलता है तो मैं सुनती हूँ उन्हें, लेकिन सर बेसिकली मैं अपनी पोइट्री खुद लिखती हूँ सर। कौन सी, मतलब फिर भी किसी को तो सुनते होंगे आप, इंस्पायर्ड कहाँ से हुए, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन दैट यू वांट टू परस्यू दिस पोइट्री एज अ हॉबी? सर फ्रॉम सर स्कूल टाइम में सर जैसे पोइट्स की कविताएं सुनते थे, तो सर विश्वास कुमार की सर एक बार मैंने एक कविता सुनी थी, तो उसके बाद से सर मुझे उसके बाद से इंस्पिरेशन मिला कि मेरे अंदर भी टैलेंट है और मुझे लिखना चाहिए। तो आप किस रस में लिखते हो? पोइट्री में रस होता है थोड़ा सा आपको है, यू नो द डिफरेंट रस ऑफ पोइट्री, दैट व्हिच आर द रस ऑफ पोइट्री एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग? नो सर, आई एम नॉट अवेयर। No literary understanding about poetry. So you just write. No You have sir. not read anything about poetry. Do you read any books Yes. about poetry? No sir. So कुछ सुना सकते हैं अपनी लिखी हुई पोइट्री? यस सर, सर एक पोएम मैंने जो अपनी बुक में पब्लिश की है, उसका सर टाइटल है जीवन के चार साथी, कि हमें सफलता के लिए हमें कौन से चार साथी चाहिए। तो सर उसकी 3-4 लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। प्लीज प्लीज। तू मरना छोड़ मैं तुझे जीना सिखाऊंगा, तू मरना छोड़ मैं तुझे जीना सिखाऊंगा, तू आगे तो चल मैं तेरे पीछे आऊंगा, पागल ना बन तू इस जमाने के बीच, पागल ना बन तू इस जमाने के बीच, तू हाथ तो पकड़ मेरा मैं तुझे कायनात दिलाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है संघर्ष, हार्ड वर्क। Very good. हिना, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दैट इंडिया हैज सरपास चाइना एंड नाउ टुडे वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो Yes. इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसमें से इतना ज्यादा यंग पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए क्या एक एसेट है या एक लायबिलिटी है? व्हाट डू यू थिंक? एसेट है। आपको लगता है अभी करंट सिचुएशन में इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट बनी हुई है फिलहाल? व्हाट इज द करंट सिचुएशन? सर एक्चुअली अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो सर अभी हमारे पास एक हर्डल है कि अभी हमारा यूथ एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन सर अगर इसको अगर हम देखें, अभी गवर्नमेंट बहुत प्रोग्राम्स लेकर आ रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमएसएमईज के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के लिए और एजुकेशन, हेल्थ, सर एवरी स्ट्रेटा में सर वो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो सर यूथ हमारा एसेट ही है। कल को अगर आप एसडीएम लगते हो, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में क्या इनिशिएटिव ले सकते हो यूथ के लिए, इनकी Sir, एनर्जी youth को के कहीं ना लिए कहीं basic- चैनलाइज करने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक? सर यूथ के लिए बेसिकली सर स्किल्स के लिए हो सकता है कि अभी जैसे अभी 21st सेंचुरी में सर हमें तो टेक्नोलॉजी का बहुत रिक्वायरमेंट हो गया है सर, अपग्रेड करना होगा, तो सर इसके लिए सबसे पहले मुझे स्किल्स के लिए यूटिलाइज करना होगा सर। उसके बाद सर यूथ के लिए ट्रेनिंग सेंटर हम खोल सकते हैं, और सर उसके बाद सर यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए सर और वेरियस स्कीम्स और डिफरेंट सेक्टर्स में जाने के लिए काउंसलिंग टाइप कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। Hina, recently many states including Haryana faced the lumpy skin disease related Yes, to sir. the caterpillars, right? So can you tell me something about that and how the government handled it? सर बेसिकली सर उसमें गवर्नमेंट ने सर अभी जो किया है, गाँव में जो ये डिजीज हुई थी तो आइडेंटिफाई किया था लोकेशन को कि कहाँ कहाँ पर ये सर ये मेनली हो रहा है। उसके बाद सर उसके लिए मेडिकल अभी वैक्सीन प्रॉपर नहीं आई है, तो प्रिवेंटिव मेजर दिए गए थे कि जो अगर काउ इल है तो उसको भी एक आइसोलेशन में रखा जाए, उससे जो मिल्क प्रोवाइड हो रहा है उसको भी यूटिलाइज ना किया जाए, और कोऑपरेटिव्स को जो मिल्क उनसे हायर करते हैं तो उनको भी एक एडवाइस किया गया था कि इस मिल्क को भी हायर मत कीजिए, और उसको एक प्रिवेंटिव मेजर और केयर की गई थी काउस की। Right. Secondly, Hina, you said that in Haryana, there are a lot of sports persons, especially, we can see our wrestlers, the kabaddi players, and many others belong to, so it's many other sports that they come from Haryana. So recently, you must have heard that many of the wrestlers, they're sitting on dharnas in Jantar Mantar and demanding certain things. So, Yes, sir. what according to you are the problems that Indian sports federations face? Because we have seen a lot of time that in the recent past as well, be it the Commonwealth scam, etc., regarding our sports federation. So what are the problems our sports federations face and how they should be rectified? सर फर्स्टली अगर अभी का इशू सर हम देखें तो अभी सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक मुद्दा आया है, जो फीमेल प्लेयर्स के लिए काफी शेमफुल हो सकता है कि जो हमारी ओलंपियंस है सर, जो एमिनेंट हमारी प्लेयर्स है, वो अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केस के लिए आगे आ रही
हिना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, now you're audible. Yes. You can repeat your answer. सर बेसिकली सर अभी जो मुद्दा आया है सर वो सेक्सुअल हरासमेंट का आया है, जिसमें एमिनेंट प्लेयर्स हमारे आ रहे हैं, और ये काफी शेमफुल है हमारे लिए कि एक रेसलिंग फेडरेशन जो ओलंपियंस है और वो एक मुद्दा एक हमारे चेयरमैन के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं। सर बाकी सर रेसलिंग फेडरेशन में एज पर मी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी एक हम कह सकते हैं कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सर फंड्स का थोड़ा यूटिलाइजेशन का इशू हो जाता है। लाइक स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको फंड्स और सर पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, डाइट चाहिए होती है। तो अभी जैसे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है सर, वहां पर प्रॉपर जिम ही नहीं है, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और जो उनका एक रूटीन होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होता है। तो सर ये मेन इश्यूज है। Hina, recently, in last year, I suppose the government also, Haryana government, launched, promulgated an ordinance regarding the reservation for the local population. यस सर। So why you think that was required? And secondly, the recent reports that have shown that there is in the entire nation of India, Haryana has the highest unemployment ratio. So what are the reasons behind that Haryana is facing such a great or such a huge unemployment ratio? And secondly, how the government should tackle it? सर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन ये है कि स्किल्स वाला इशू है फर्स्टली। सर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो जो भी 75 रिजर्वेशन वाला इशू है सर, वो काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज है हमारा टैकल कर सकता है, लेकिन सर साइड बाय साइड हमें स्किल बेस्ड पर भी जाना होगा, अदरवाइज हम लूज कर जाएंगे सर। अभी जैसे हम काफी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, लॉजिस्टिक्स में सर हमारी रैंक काफी अच्छी आ रही है, तो उसके लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सर इसको टैकल करने के लिए फर्स्टली सर वही ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी सर। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा सर। एजुकेशन फील्ड में सर इंडस्ट्रीज ओपन करनी होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित करना होगा। हिना, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को यूज कर पाओगे सिविल सर्विसेज में? यस सर। किस तरह से और क्या कर सकते हो उसमें, किस तरह से हेल्प होगी? सर लाइक मैं सर बायो स्टूडेंट हूँ, तो सर इसके सर बॉटनी एज माय ऑप्शनल, तो सर मैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर सबसे पहले अभी जा सकती हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है सर इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा इशू है। तो फर्स्टली मैं सर अपनी एकेडमिक्स को उसमें यूटिलाइज कर सकती हूँ कि कैसे हम सर इरिगेशन वाले मेथड में सर हम कर सकते हैं। जैसे अभी SYL का मुद्दा चला हुआ है, तो उसमें सर अभी वाटर सबसे बड़ा इशू है, तो उसमें मैं सजेशंस दे सकती हूँ कि कैसे इरिगेशन को और मेथड जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड सर, इस टाइप के मेथड्स ऑप्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद सर क्रॉप्स पर दे सकते हैं। एक राइस सर फ्लड रिक्वायर होता है, फ्लडिंग सीड्स चाहिए होता है, तो उसके लिए सर हम डायरेक्ट सीडलिंग्स को इम्प्लांट कर सकते हैं सर। बायोटेक हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि GM क्रॉप्स हो गया सर, BT क्रॉप्स हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, तो सर इन सब चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की जैसे बात करी, सो व्हाट इज योर टेक ऑन द रीसेंट इशू दैट हैज हैपेंड इन जोशीमठ? आपका क्या टेक है उसके ऊपर? सर जोशीमठ बेसिकली सर वहां पर जो लैंड डिप हुआ है सर, वो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से हुआ है सर। वहां पर जो भी टनल बन रहा है उसका जो इफेक्ट है वो वहां के लैंडस्केप पर आ रहा है। मैन मेड एक्टिविटीज वहां पर ज्यादा हो चुकी है, तो सर वहां पर जो लैंड पर है बर्डन प्रेशर ज्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से सर लैंड स्लाइड हो रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या एक्शन होना चाहिए इसके रिगार्डिंग? As agar if you would have been responsible for this Joshimath and all the situation would have faced the situation, so what would have been your first action? सर फर्स्टली मुझे वहां से इवैक्यूएशन करना है, जो भी सर वहां पर डेंजरस लोकेशन है वहां से मुझे इवैक्यूएशन करना है, ताकि मैं पीपल्स को सबसे पहले सेव कर सकूं सर। उसके बाद वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स और EIA वहां पर देखना होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किस तरीके से यहाँ पर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। लाइक अभी गवर्नमेंट ने डिमोलिश किया सर कुछ होटल इंडस्ट्रीज को, तो इसी टाइप के सर कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि वहाँ का जो प्रेशर है वो कम किया जाए और वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, उनको एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए। राइट, सो डन हिना, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सर। पहले तो आप हिना बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? पहली बात, आपके हिसाब से आपको
आपको कैसा लग रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए? सर लाइक मैं अभी डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रही हूँ अपनी थॉट्स को, कुछ सेक्टर्स पर ही मेरा सर अभी व्यू जाता है। जैसे अभी सर ने हाईलाइट किया था, आप एजुकेशन को लेकर थोड़ा ज्यादा इमोशनल लग रहे थे हमें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल आपको एक फीडबैक हम अगर दें, सो योर कम्युनिकेशन इज गुड, व्हाटएवर यू हैड इन योर माइंड यू वर वेरी इजीली एबल टू टेल अस एवरीथिंग, योर एक्सप्लेनेशंस वर डिसेंट। थोड़ा सा अभी हमने आपको आपके कोर एरियाज में ज्यादा ग्रिल नहीं किया, हमने भी बहुत ज्यादा करंट इश्यूज के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, नेक्स्ट इंटरव्यू इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड, बट Yes, कुछ एरियाज को आप अच्छे से इनको प्लान करके जाना, करंट इश्यूज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जोशी मठ का भी आप बहुत बेटर आंसर मुझे लगता है आप दे सकते थे कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सर एनी पॉइंट? मैंने तो काफी सारी लिस्ट बनाई है तो हिना देखो, सबसे पहले तो है कि आप ना, जब सबसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन इंटरव्यू एक बार क्वेश्चन पूछेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को आंसर करो और उस ऑर्डर में आंसर करो जैसे उसने पूछा। वो दे विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा तो मैंने बीच में क्वेश्चन रिपीट करा, क्योंकि आपने एक पोर्शन का जवाब दिया, दूसरे पोर्शन छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन रिपीट करा, वो रिपीट नहीं करेंगे। okay, sir. आप उनके क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, लेट देम कंप्लीट देयर क्वेश्चन, प्रोसेस इट इन योर माइंड, उसके बाद जवाब देना स्टार्ट करो। आपको उस ऑर्डर में जवाब देना है जैसे उन्होंने सवाल किया है, वो एक रिपीट नहीं करेंगे, वो नेगेटिव जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज है कि आपके जो आंसर्स थे वो बड़े ऑब्जेक्टिव, जैसे सर ने पूछा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एसेट है और कैसे, आपने सिंपल तो जवाब देकर एसेट है ना, कैसे एसेट है, सर का सवाल था कैसे एसेट, वो कैसे एसेट वाली बात आप स्किप कर गए, वही मेजर आंसर था। तो वो आपको याद रखना है कि यार ये पूछा गया, इसका जवाब देना मेरे को जरूरी है मेरे लिए। तीसरी चीज आती है कि आपने क्वेश्चन से डिविएट किया, काफी सारे क्वेश्चन थे डिविएट किया आपने। जैसे मैंने आपको बीच में भी बोला कि मैंने आपसे वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन पूछा या फिर एजुकेशन क्वेश्चन पूछा, आप उसको डायग्रेस करके हेल्थ वाले सेक्टर में लेंगे, ठीक है। मैंने आपसे एजुकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, आप उसको डायग्रेस करके हेल्थ वाले सेक्टर में लेंगे। वो डेविएशन जो है अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होती तो एक्सेप्टेबल होता, पर वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं, कि वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन से अगला था, ठीक है। तीसरी चीज जो है, मैंने आपसे मैंने पूछा कि लंपी स्किन डिजीज होती क्या है, आपने मुझे बताया नहीं कि लंपी स्किन डिजीज होती क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट एक्शंस क्या है, उसको लेके गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर उसको पढ़ो कि गवर्नमेंट ने उसको लेके क्या एक्शंस लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पेसिफिकली हरियाणा गवर्नमेंट। आपको पता नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एक्शंस लिए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स कैटल ओनर्स के लिए या फिर उसके अलावा भी जो बाकी स्कीम्स है वो पता नहीं चाहिए। तीसरी बात है कि जैसे हेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, तो आपने बोला कि स्किल्स की बात करें, हमने 5-6 जगह स्किल्स की बात करी और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करी। किस तरह की स्किल्स, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज लैकिंग है? अब आपको जब आप आंसर दोगे, यू नीड टू टेल दिस आर द स्किल्स, लाइक कपल ऑफ देम, द जॉब अपॉर्चुनिटीज वी आर लैकिंग इन हरियाणा आर दिस, बिकॉज हरियाणा में, गुड़गांव में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, पूरा भारत गुड़गांव आके नौकरी कर रहा है, पर हरियाणा के लोग क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि अभी भी हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक ये चीज है। तीसरी चीज है कि जब जोशी मठ सर ने क्वेश्चन पूछा तो उसमें मैंने ऐड करा कि आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो आपने बोला कि इवैक्यूएट, बहुत बढ़िया, उसके बाद आप कहां चलेंगे, EIA, वो तो हमारा काम ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि एज अ रिस्पोंडेंट आप वहां के रिस्पॉन्सिबल हो, आपका एक्शन क्या रहेगा, आप उस एक्शन पे सिर्फ इवैक्यूएट के बाद आप गवर्नमेंट पॉलिसीज EIA एक सेक्टर में चलेंगे, वो हमारा एक्शन ही नहीं है, तो वहां पे भी आपके क्वेश्चन में डेविएशन होगी, ठीक है। और चौथी चीज, जैसे पोएट्री लिखते हो, आपने किताब भी लिखी है पोएट्री की, अ लिटिल बिट ऑफ लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पोएट्री इज रिक्वायर्ड, अ लिटिल बिट, नॉट अ लॉट। Okay, sir. जैसे मैंने पूछा कितने तरह के रस होते हैं, तो ये बड़ी जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं पोएट्री नहीं करता हूं, ठीक है, पर ये मुझे भी पता है कि कितने तरह के रस होते हैं पोएट्री में, ठीक है। जैसे हमने नाम लिया, आपने नाम लिया था विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास नाम है, ठीक है, ये बड़ी बेसिक फैक्चुअल एरर है ना। आपका पोएट्री का इंटरेस्ट है, आपकी बुक पब्लिश हुई है, वो आपका एक बड़ा पॉजिटिव सेक्टर, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो आप जस्टिफाई करना, आप उस साइड के ऊपर अपने आप की इंटरव्यू को डिबेट कर सकते हो, पर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके जाओगे, ठीक है। तो एंगेज कर दो कि यार पोएट्री के बारे में थोड़ा उनको ऐसा बता दो कि वो आपसे पोएट्री की बात करेंगे, आपका फोटे है ना वो, ठीक है। इस तरह से आप एंगेज कर सकते हो। चौथी बात, जैसे आपके सर ने 2-3 बार एजुकेशन बैकग्राउंड का सवाल पूछा, आपने मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करी हुई है और ग्रेजुएशन बॉटनी, है ना, पर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में, स्टार्टिंग के अलावा। आपसे पूछा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को सर्विसेज में कैसे यूज करोगे, बॉटनी यूज नहीं करोगे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज करोगे,
Okay, sir. दोनों को लेकर आपने दोनों को लेकर चलना है कि सर मेरे पास इतनी भरमांड है नॉलेज का कि मैं दोनों को मिक्स कर सकता हूँ, डाइवर्सिफाइड हूँ। आपने उन दोनों को लेकर चलना है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ ही दिया बीच में। ठीक है, तो बस यही कुछ हमारे वो हैं, इन चीजों पे काम करो आप।